مشاہدین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان۔ اور آج الحمدللہ ہم 20ویں سحری اب سے کچھ دیر بعد تناول فرمائیں گے، اور 20ویں نشریات میں آپ کو خوش آمدید، اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم آج بالے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان۔ میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی، آپ سب کو محبت و سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ اور یقینی طور پر روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ہم لوگ یہاں پر مہمانان سے گفتگو کرتے ہیں، عالم دین سے دینی مسائل جانتے ہیں، تناخواہ حضرات سے تناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ حیدرآباد نیوز کی جو کاوش ہے، یہ جو کوشش ہے، یہ آپ کو پسند بھی آ رہی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا، جن میں گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ چیرمال ہاؤس، لاسیفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز اور زیان ریزیڈنسی۔ اس کے علاوہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں جی بیگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ تمام کر آپ کا بے شکریہ کہ آپ لوگ حیدرآباد نیوز کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام ربانی سے، تو میں گزارش کروں گا جناب محمد علی نقشبندی صاحب سے کہ تلاوت کلام ربانی سے آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، بہت ہی اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے تلاوت کلام ربانی کی تلاوت سے انہوں نے آج کی نشریات کا اس وزن کا آغاز کیا، اور اب ہم بڑھیں گے ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اور کوئی ہے ثناخواہ ہمارے ساتھ موجود؟ اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو سبحان اللہ۔ چلیں جی جناب علی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہو قلم تیرے ہیں۔ جناب محترم محمد انصف قریشی صاحب، زیر صدارت محمد ارسلان قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ۔ جزاک اللہ۔ خوشبوئے پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ اور شعر قابل سماعت ہے کہ مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، مشغول
مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. اور حاصل کلام شعر کہ نظریں ہیں گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی نظریں ہیں گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی رمضان کی بہاریں آئی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں رمضان کی بہاریں آئی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. ماشاءاللہ بیٹا ہوں مسجد نبوی میں. سبحان اللہ. جناب علی اللہ بہت سب کو وہ دیار دیکھنا نصیب فرمائے. اس رمضان کریم کے صدقے میں اللہ کریم آپ کی ہم سب کی زندگی باخیر رکھے اور ہم سب آئندہ سال رمضان شریف مکے اور مدینے میں گزاریں. بالکل آمین آمین آمین. ناظرین کرام ہماری یہ جو نشریات ہے یقینی طور پہ ماہ رمضان کی ان راتوں میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ راتیں جن راتوں میں رحمتیں لٹائی جاتی ہیں نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جی کوشش ہماری ہے کہ اس نشریات کے ذریعے بھی آپ تک وہ سب چیزیں پہنچائی جائیں جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اچھا جس طرح آج ہم دونوں ہی بات کریں گے. کوئی مہمان بھی آیا ہے؟ بالکل مہمان آیا میں اسی کی جانب جا رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. 2 دفعہ اجازت ہے کہ میری طرف سے ایک ان کی طرف سے اجازت. علی بہت شکریہ. تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ مختلف مہمانان موجود ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں تعارف کرواؤں تو سب سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں اور دینی مسائل کا حل ہم ان سے جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جناب علی بہت شکریہ. دوسرا اشرا اختتام پذیر ہونے والا ہے علامہ صاحب موجود ہے. ان کے ساتھ ہمارے درمیان آج کے جو مہمان موجود ہیں آپ دونوں مہمانان کا جو تعلق ہے وہ شوبز کے ادارے سے شوبز کی فیلڈ سے ہے شوبز انڈسٹری سے ہے. اور جس طرح کل ہم نے صحافی حضرات سے بات کی تھی تو آج اسی طرح ہم لوگ یہ جو شوبز انڈسٹری ہے اس پر بات کریں گے کہ جو اداکار ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہوتی ہیں جو پس پردہ یعنی کہ کیمرے کے پیچھے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو چیزیں ان لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہیں اس میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. تو آج جو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر اداکار بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں جناب رفیق عیسانی مومن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ زبردست. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ان کے ساتھ ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں آپ بھی سینئر اداکار ہیں اور آپ کا بھی جو کام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عرصہ دراز سے آپ اداکاری کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں مختلف چینلز کے ساتھ آپ کام کرتے رہے ہیں. میری مراد جناب ناصر خان بنیری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس. زبردست جی. آپ کی ماشاءاللہ آواز خدا سلامت رکھے. اور ناظرین آج جو ہے وہ ان سے بات کریں گے اور ان دونوں کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے اس نے میرا موڈ کم از کم اچھا کر دیا ہے جی. تو آج گفتگو بڑے مزیدار ہونے والی ہے. تو میں بات شروع کروں گا رفیق صاحب آپ سے کہ ماہ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں سب لوگوں کے پاس آتا ہے لیکن ایک تھنکنگ ہے کہ بھائی اداکار جو ہوتے ہیں شاید وہ نیکیاں نہیں کرتے اللہ سے بڑا دور ہوتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ آپ کا ماہ رمضان کس طرح گزرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا اور اس کے سی او عزیر خان زئی صاحب جو میرے خیال میں کافی عرصے سے یہ رمضان ٹرانسمیشن لائیو کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور کبھی کسی سال ہم گیسٹ کے طور پہ آ بھی جاتے ہیں. تو سچی بات ہے کہ حیدرآباد نیوز کا یہ کام بہت اچھا اور اعلیٰ ہے اس لیے کہ اس میں نعت بھی ہے اس میں منقبت بھی ہے اس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اور علامہ حضرات وہ آتے ہیں
समाजी लोग आते हैं, साफ़ी लोग आते हैं, हम जैसे आर्टिस्ट भी कभी आ जाते हैं। अब बात हुई कि हम लोग कैसे रमज़ान शरीफ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज ये हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये माह रमज़ान बरकतों वाला महीना जो हमें एक साल में 30 दिन मिलते हैं, तो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह जब हम छोटे थे तो हमारी फैमिली, ज़ाहिर हम मेमन फैमिली, कारोबारी लोग, दीनी लोग, पढ़े लिखे लोग, तो उस फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। तो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हैं। और ये क्या है कि पता नहीं, आप कहते हैं कि आर्टिस्ट लोग नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, रोज़ा रखते नहीं रखते। भाई आर्टिस्ट ऐसे लोग हैं, एक तो उनके दिल में सबके लिए एहतराम है, सबसे वो मोहब्बत करते हैं। कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी फ़िरके से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आर्टिस्ट इंसानियत को अवलियत देता है। इसीलिए आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग जो है, हमारा अंदर जो है एक, हम लोग हसास होते हैं, नफीस होते हैं, ठीक है ना। तो ये माह रमज़ान जब आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि ना सिर्फ इसमें रोज़े रखे जाएं, लेकिन जो लोग रोज़ा रखते हैं या जो लोग गरीब हैं, जिसमें इफ्तार की पोजीशन नहीं है, सहरी की नहीं है, ख़ास खुराक के हवाले से हमारी बरादरी के लोग अगर सफ़ेद पोशी में किसी से मांग नहीं सकते, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं आर्टिस्ट आपस में कि किसी न किसी तरह आर्टिस्टों को, सफ़ेद पोश लोगों को, या जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं या जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं। इसलिए कि ये हम पे लाजिम है। रमज़ान का सवाब सिर्फ रोज़े से मुकम्मल नहीं होता। रमज़ान शरीफ की बरकत ये है कि आप किसी को काम आओ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, वो है ना, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाहें मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल। क्या बात है, तो बात ये है कि इंसानियत अहम है। रोज़ा रखना, रोज़ेदारों की सपोर्ट करना, मदद करना, उनके लिए काम करना, ये अल्लाह ने जो हमें, ये तो अल्लाह का करम है जिसने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, और ये माह रमज़ान हमें नसीब हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए तो खुशकिस्मती है। और हमारे आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट जो साहिब हैसियत है, वो अपने जेब से भी सपोर्ट करते हैं दूसरे आर्टिस्टों को, दूसरे लोगों को जो गरीब गुरबा है, मिस्कीन है। और मैं समझता हूँ ये हम पे लाज़िम है, हमें करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि माह रमज़ान फ़कत वही वाली बात है कि अगर हम फ़कत सजदों में सर पटकते रहेंगे तो ये भी सिर्फ दीन नहीं है, बल्कि हमें जो है वो इंसानियत का दर्द भी रखना चाहिए। और इंसानियत ही जो है वो ज़रूरी है हर इंसान के अंदर, उसके दिल में होना। तो हम जो है वो, जनाब नासिर साहब, मैं आपके जाने पाऊँगा। और सवाल मेरा आपसे ये है कि हम ये देखते हैं कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब अगर हम स्टेज शोज़ की बात करें, जो स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, अब तो उसकी तादाद बहुत कम हो गई है, बहुत कम रह गई है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं होते हैं। उसमें जितनी मेहनत होती है उतना मुआवजा नहीं मिलता। तो इस पर ज़रा बताइएगा कि जो आर्टिस्ट लोगों के साथ जो ये बदसलूकी की जाती है मुआवजे के मामले में, इस पर क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? इस पर तो मैं यही कहूँगा कि नात के चंद आशार अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, माइक मजा जरा, ये सब मजा आ गया। ये सब तुम्हारा करम है आका, बख्श के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी वो फुरखता की
मैं काबिल या रसूल अल्लाह। हुजूर की परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। तो दोस्तों बात ये है कि ये अल्लाह का करम है जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, ये गाड़ी चल रही है। वरना आप यकीन करें, अभी हमारा एक ड्रामा हुआ था बेवा, अच्छा, तो बड़ा सुपर हिट ड्रामा था, तो उसको एक इस्तकबालिया मिला। तो मैंने उसमें कहा कि हम ड्रामे के सेट के लिए स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हम ड्रामे के आर्टिस्ट जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके लिए स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हम ड्रामे के जो और दीगर उसके अखराजात होते हैं। तो ये मेल आर्टिस्ट है, एक आध दो स्पॉन्सर मेल आर्टिस्टों के लिए भी पकड़ लिया जाए, ताकि उनको भी तो बेचारों को कुछ मिले। सीनियर आर्टिस्ट कितना भी मेल आकर कितना भी सीनियर हो जाए वो बेचारा, और फीमेल आर्टिस्ट भले कल आए, वो भी हमारे साथी फनकार हैं, हमारी दोस्त हैं, उनका भी पेट है, उनको भी, लेकिन उनको मिलेंगे, सहाफ़ी लिखेंगे भाई नासिर बुनेरी फलां 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 ने अपने किरदार को निभाया, फीमेल आर्टिस्ट फलां ने भाई ऐसा कर दिया, यूँ कर दिया, ज़मीन आसमान मिला दी। तो मैं कहता हूँ कि भाई कल को आप मरोगे तो कांदा देने ये मेल आर्टिस्ट आएंगे, फीमेल नहीं आएगी। जिंदाबाद भाई। तो मर्दों को भी बेचारों को भी आप अपने उस कलम के ज़रिए उनकी भी दाद, उनको भी हौसला मिले कि यार हमने ये काम किया, हमारे काम को सराहा गया। पहले जो थे सहाफ़ी वो लिखते थे, आप यकीन करें मैंने एक ड्रामा किया था उमर मारवी, उसमें मैंने एक फोक का कैरेक्टर किया था जो विलन था, उसमें जो मारवी को घर से निकलने पर उस पर वो जो उसका ज़रिया बनता है बादशाह को जाके वो सुमरों को बताता है कि भाई इस तरीके से खूबसूरत लड़की है ये वो फिर उस घर से। तो आप यकीन करें उस ज़माने में आज से 20-25 साल पहले इबरत अखबार में क्वार्टर पेज पे उसका लगा था खुलासा, और उसमें 4-6 लाइनें उस राइटर ने मेरे लिए लिखी थी कि एक पश्तो आर्टिस्ट जो पश्तो बोलने वाला है, उर्दू ड्रामों में छोटे मोटे रोल करता है, मारवी ड्रामे में उसने फोक का कैरेक्टर करके अमर कर दिया उसको। तो हम इतने खुश हुए। हमीद सिंधी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर, अभी वो वफ़ात पा चुके हैं, तो वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे, वो उसने फिर हमारे लिए 2 लफ्ज़ बोले। तो मकसद कहने का ये है कि आजकल के सहाफ़ियों को मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ लेडीज़ के लिए लिखते, मर्द बेचारा न पैसे मिले उसको, न उसको लिखने में कोई ऐसा ही है जी, यही आज सहाफ़ियों का है जी, जब मर्द हो तो पैसे नहीं मिलते। अच्छा, और खातून हो तो फिर पैसे ही पैसे। आपके सवाल में थोड़ा इजाफा करें। जी हाँ, जी हाँ। आपने कहा कि स्टेज ड्रामे नहीं होते, अगर होते हैं तो उसमें पेमेंट का इशू है। मैं समझता हूँ कि स्टेज ड्रामा थिएटर इस वक्त हर जगह पे हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। बिटाई आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफार्म से 1000 से ज़्यादा थिएटर मैंने किए हैं, उसमें तकरीबन 200-250 थिएटर मैंने भी मेरे साथ खान साहब ने भी किए हैं। एक ड्रामा भी फ्री का नहीं होता, ठीक है। उज़ैर खान ज़ई ने मेरे ड्रामे रिकॉर्ड किए हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ के और मुख्तलिफ INGOs के। जो उज़ैर भाई ने मेरे ड्रामे रिकॉर्ड किए वो हमें फंडेड थे यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। इस वक्त भी IRC के साथ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ के। ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, जिससे सब आर्टिस्टों को मेल फीमेल को कुछ न कुछ मिल रहा है। लेकिन जितना टैलेंट है हैदराबाद में उतना काम नहीं है। बात ये ज़रूर है, लोग ज़्यादा हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हैदराबाद में, बहुत बड़ा टैलेंट है आर्ट में, कल्चर में। आपको बहुत सारे शायर मिलेंगे, स्टेज थिएटर के आर्टिस्ट मिलेंगे, राइटर्स मिलेंगे, ड्रामा लिखने वाले डायरेक्टर मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हम लोग मिल के दूसरों के लिए कोशिश करते हैं, जिससे हमें भी कुछ मिलता है और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इदारों की चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध या हेरिटेज मिनिस्ट्री फेडरल है, उनको चाहिए कि हैदराबाद के आर्टिस्टों को मौका दिया जाए, उनको माली तौर सपोर्ट किया जाए, ये ज़रूर है। आज माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं, और आज है 20वीं सहरी, आज है 20वीं सहरी, और हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक किसानी और नासिर खान बुनेरी। वाह,
वाह, ये जो आपकी ठंडी शायरी है ना, और लगातार ठंडी है, क्या करें, ये शदीद ठंडी भी नहीं है, ये लगातार ठंडी है। ये मौसम की बल्कि वजह से। दिसंबर का एहसास होने लगा। लेकिन वो भी बात नहीं ना, जैसा मौसम है, दिसंबर का कोशिश मौसम गर्म है तो चीज़ ठंडी होनी चाहिए, उनका सी मौसम गर्म है। जनाब अली, सही हो गया। अच्छा रफीक साहब, ये जिक्र हुआ कि भाई खवातीन आर्टिस्टों को ज्यादा फौकियत दी जाती है मेल आर्टिस्ट, इसका रीजन क्या है? नहीं देनी चाहिए ना, इसलिए कि मेल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान की बात लें या पूरी दुनिया की लें, मेल आर्टिस्ट हर जगह ज़्यादा होता है, उसके लिए पाबंदियाँ नहीं होती। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट कम होती है, उनके लिए प्रॉब्लम है। और खुसूसन पाकिस्तान में अगर लड़की घर से निकले, स्कूल से के लिए निकलती है, तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में जाती है तब भी प्रॉब्लम है। और अगर एक्ट के लिए निकले तो लोग सारे भाई ये कहाँ जा रही है। तो ऐसे माहौल में अगर कोई लड़की, कोई खातून आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, थिएटर के लिए, टीवी के लिए घर से निकलती है तो प्रॉब्लम है। इसलिए उनका रेशा बहुत कम है, तो उनको अहमियत मिलनी चाहिए, उनको बजट मर्दों से स्पेशली ज़्यादा मिलनी चाहिए। अच्छा, मर्द हजरात एक बाइक पे 3-4 बैठ जाएंगे, अब फीमेल आर्टिस्ट उसको रक्षा चाहिए, उसको लिफ्ट अलहदा चाहिए। तो इसलिए उनको मैं समझता हूँ कि वैसे भी हम लोग एक रेस्पेक्ट है वुमेन्स के लिए, होनी भी चाहिए। ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की बहुत इज्जत करते थे, हालांकि खवा वो भले मुसलमान ना भी हो, ठीक है, तब भी उनकी इज्जत करते थे। तो जाहिर है हम लोग उसके उम्मती हैं, मुसलमान हैं, इंसान है, तो ये हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हम भी फीमेल्स की, भले वो आर्टिस्ट क्यों ना हो, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, इसलिए हम करते हैं। अच्छा, उनकी हम मुखालफत नहीं करते, वो भी, उन बेचारियों का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो हमारे साथ काम कर रही, दायरा वो भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। हर आर्टिस्ट की ये कोशिश होती है कि मेरा काम अच्छा हो, लेकिन जो लिखने लिखाने वाले, हमारी शिकवा उन लोगों से कि आप फिर मकसद कहने का ये कि बराबरी की बुनियाद पर लिखें। अगर लेडीज़ ने हमारी अच्छी परफॉर्मेंस की है, हम खुद उनको दाद देते हैं और खुद उनके लिए लिखते हैं फेसबुक पे, भाई हमारी शान है, हमारी आन। लेकिन जो मेल आर्टिस्ट हैं उनको भी तो बेचारों को आप लेके आओ, उन्होंने खुदा न खास्ता कोई सर के बल काम नहीं किया, या उनकी कोई सिंग नहीं है या कोई पूंछ नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है, आर्टिस्ट है, अपने किरदार को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जब हमने किया, हमारे वाले को आपने 5 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट ड्रामे में कर रहे हैं, फलां ने अपने किरदार को निभाया, फलां ने तो भाई ऐसे कर दिया, यूं कर दिया, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा वो सही हो गया। अच्छा इसानी साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह कराची में कराची आर्ट काउंसिल है और वहाँ मैं देखता हूँ कि बेशतर ड्रामाज और दीगर चीज़ें वहाँ होती रहती हैं, शहर हैदराबाद में इस चीज़ का फुकदान मुझे दिखाई देता है। हालांकि आर्ट काउंसिल तो यहाँ भी है हमारे पास, लेकिन क्या वजह है? तो आर्ट्स काउंसिल कराची जो है, कराची एक सेंटर है, मरकज़ है, एक इदारा ठीक है, और बहुत बड़ा इदारा है। उसका जो सरबराह अमन शाह साहब, उसने बहुत काम किया है। आपको बताऊं कि 50+ यानी 50 करोड़ से ज़्यादा उनकी एक सालाना बजट है, और उसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे, गैर मुल्की इदारे भी उनको फंड्स देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो आर्ट्स काउंसिल हमारे यहाँ ये बिल्डिंग तो है, जैसे हम लोग मेहरान आर्ट्स काउंसिल बोलते हैं, जिस जगह को हम आर्ट्स काउंसिल बोलते हैं उसका नाम है मेहरान आर्ट्स काउंसिल। ये एक बिल्डिंग का नाम है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट की ये बिल्डिंग है, वहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। अभी तकरीबन 8 से 10 महीना पहले आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद बनी है, ठीक है, बन गई है। इंशाल्लाह ताला वो रमज़ान के बाद टेक ओवर कर रही है, और इंशाल्लाह इसी बजट में जून जुलाई में जो आ रही है ना, तो इसमें ग्रांट भी हो जाएगी। सही। अब जब ग्रांट होगी तो काम होगा, तो आर्टिस्टों को, हैदराबाद की टीम को फ़ायदा होगा। शायर हजरात होंगे, अदब के हवाले से हो, रक्स के हवाले से हो, म्यूज़िक के हवाले से हो, थिएटर के हवाले से हो, तो वो सब तभी होगा जब ग्रांट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसी साल ये अब आ रहा है जून जुलाई, इसमें ग्रांट हो जाएगी, और इंशाल्लाह हैदराबाद के आर्टिस्टों के लिए, शायरों, अदीबों के लिए बेहतरी होगी। मेरे बड़ पुरुम्मीद हैं आर्टिस्ट इस से कि आर्ट्स काउंसिल की जो
हिंदी में कहते हैं वागू, हाँ जी, जो उसके स्टेयरिंग बागडोर है, संभालेगा जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। तो वो अच्छे लोगों के हाथ में है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द ये सिलसिला शुरू होगा और आर्टिस्टों को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उम्मीद सबको और उम्मीद होनी भी चाहिए जी। अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं और आज 20वां रमज़ान चूँकि स्टार्ट हो चुका है, इस्लामी तारीख़ में फ़तह मक्का का दिन है और आलिशान दिन है जिसमें मुसलमानों ने जो है वो अपनी एक और फ़तह हासिल की थी। तो जनाब अल्लामा अरसलान साहब, मैं चाहूँगा ज़रा फ़तह मक्का के हवाले से, इस दिन के हवाले से कुछ बात कीजिए। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद ने फ़तह मक्का की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि महबूब हमने आपको रोशन फ़तह अता की। रोशन फ़तह बनी हुई इंसान ने 8 हिजरी 20 रमज़ान मुबारक को एक ऐसी फ़तह भी ज़मीन पर देखी है कि कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके पीछे का पस मंज़र, उसकी वजाहत क्या है कि देखें, आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत से क़बल जो मक्के के रहने वाले काफिरीन थे, मुशरिकीन थे, वो सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक, अमीन, मुहतरम, मुकर्रम मानते थे। लेकिन जैसे ही आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी हिदायत और उनके फ़ायदे के लिए ऐलान नबूवत फरमाया और उनको हिदायत की तरफ आने की दावत दी, तो यक वो सब के सब आपके दुश्मन हो गए। अब अगर वो अक्ल और समझ रखते हैं तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन रहमत में पनाह लेते हैं और ता क़यामत तक के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का मुज़्ज़ा जाफ़िज़ा उनके लिए होता। अब जिनके नसीब में था उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पैगाम कबूल किया और ईमान ले आए, लेकिन आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेपनाह परेशान करने के बाद आखिरकार वो वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इजाज़त अता फरमाई कि आप मक्के से मदीने हिजरत कर गए। यहाँ वाक़े बयान करने से पहले एक पहलू लाजमी जिक्र करूँगा कि देखिए, आप, मैं या कोई भी इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारता है, दोस्त होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं, जिन गली कुचियों में उसका बचपना, लड़कपन, जवानी निकली होती है, तो ज़ाहिर है उन जगहों को छोड़ना आसान नहीं होता है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 53 साल तक मक्के में गुजारने के बाद, बड़ी मुशक्क़त परेशानियों के बाद मक्का छोड़ के जाना पड़ा, तो आपने मक्के की वादियों से बाहर आने के बाद मक्के की तरफ देखकर कहा कि मक्का तो मुझे बहुत प्यारा है, अगर मुझे कुफ़ार कुरैश तंग ना करते तो मैं कभी मक्का छोड़ के ना जाता। फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मक्का मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसको तेरी रज़ा के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन अब तू मुझे वहाँ ले जाए जो तेरी पसंदीदा जगह है। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की तरफ हिजरत फरमाते हैं। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इसलिए मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी कि वहाँ पर दीन की तालीम पर अमल करना आसान हो जाए, तबलीग दीन आसान हो जाए, लेकिन काफिरीन ने आपका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, अलियाज़ु बिल्लाह वहाँ भी तंग किया। उस तंग के बाद बहुत ज़्यादा आजमाइश परेशानी जब होने लगी और सहाबा का इसरार था कि मक्के में हम जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ करें, इबादत करें, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कम 6 हिजरी को, हिजरत के 6 साल के बाद 1400 सहाबा के साथ मक्के की तरफ हिजरत फरमाई कि वह हम तवाफ़ करें और इबादत का मौका मिले, लेकिन काफिरीन ने आपको इजाज़त नहीं दी। फिर उस वक्त काफिरीन और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत सारी शराइत ऐसी थी जो बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत के पेश नज़र तमाम शराइत को मान लिया। उनमें 3 शराइत काबिल तवज्जो थी जो फ़तह मक्का का पस मंज़र और उसकी वजह बनी। पहली तो ये थी कि 10 साल तक दोनों फ़रीक़ैन यानी मुसलमान और काफिरीन में कोई जंग नहीं होगी, ये मुआहदा हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि मुसलमान जब चाहेंगे जिस कबीले से, यानी जो दूसरे कबाइल है उनमें से जिससे चाहे दोस्ती कर सकते हैं, ताल्लुकात वगैरह रख सकते हैं, ये वाली बात भी तय हो गई। उसके बाद ये भी तय हुआ कि मुसलमानों को अगले साल उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये शराइत तय करने के बाद तशरीफ़ ले आते हैं। तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 2 कबीले थे, एक बनु खुज़ाआ, एक बनु बकर। तो बनु खुज़ाआ और बनु बकर जो इन दोनों में आपस में दुश्मनी थी। और जो शराइत तय हुई थी उसमें यह बात थी कि अगर किसी भी कबीले से मुसलमान मुआहदा करें या उनसे मदद लें तो वो रख सकते हैं, इजाज़त है, और यही काफिरों को इजाज़त थी। तो बनु खुज़ाआ के साथ मुसलमानों ने मुआहदा किया, उनके साथ ताल्लुकात मामलात बेहतर हो गए। बनु बकर के साथ काफिरीन जो है उन्होंने मुआहदा किया। आखिरकार कुछ वक्त के बाद कुफ़ार कुरैश ने एक कबीला था बनु सुबाआ के नाम से, उनके साथ मिल के बनु खुज़ाआ पे हमला किया और उनको बेपनाह जानी नुकसान हुआ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खबर मिलती है तो आपने फ़ौरन 3 शराइत काफिरों को भेज दी
کہ یا تو جو تم نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کرو، یہ نہیں کرتے تو جو خون بہا ہے اس کی دید دو، یعنی اس کا قصاص ہونا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کا اعلان کرو واضح طور پہ کہ صلح حدیبیہ جو تھی، جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو تیسری جو شرط تھی وہ فوراً ان لوگوں نے مان لی کہ ٹھیک ہے معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے یہ بات حضور علیہ السلام نے اپنے کم و بیش 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو لشکر تیار کیا اور مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ اب آپ ان تمام واقعات کو ماضی کے ذہن میں رکھیے کہ فتح مکہ کا پس منظر آپ کو آسانی سے یاد ہو، اور وجہ بھی سمجھ میں آئے کہ 53 سال جن لوگوں نے مکے میں گزارے ان کو بڑی اذیت پریشانی مشقت کے ساتھ نکالا گیا ہو۔ اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں لشکر جدال کے ساتھ تو وہ تکلیفیں یاد ہے، طائف کے میدان میں جو پتھر بٹھائے گئے وہ بھی یاد ہیں، جو بچپنے میں تنگ کیے گئے وہ بھی یاد ہیں، جو جناب ابو طالب کو پریشان کیے گئے وہ بھی یاد ہے۔ جب لشکر کے ساتھ آتے ہیں وہ کافرین یہ ہیبت اور یہ رعب دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اپنا ہار مان لیتے ہیں کہ ہم جنگ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مکہ کافرین کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے حرمت کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ تلوار اٹھانا ناپسند کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی رحمت کا ذریعہ دیکھیے، آپ اس وقت بھی آگے فرماتے ہیں جنگ سے پہلے کہ اگر کوئی ہتھیار کو ڈال دیتا اسے امان ہے، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا اس کو بھی امان ہے، اگر کوئی حرم میں داخل ہو گیا ومن داخلہ کان آمنا اس کو بھی امان ہے۔ تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائی تھی اور ظاہر سردار تھے، آپ کے ایک روب تھا اور آپ کی ایک ریپوٹیشن تھی، آپ نے اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے گھر میں جو داخل ہو اس کے لیے بھی امان عطا فرما دیں۔ تو حضور نے دریا رحمت جوش میں آ کے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آتا ہے اس سے بھی امان ہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آنے کا انداز یہ تھا، کم و بیش عرصے کے اندر آپ کو نصیب ہو گئی، بلکہ اس سے بھی کم 8 سال کم و بیش، تو ہونے یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کافرین جنہوں نے تنگ کیا ان سے بدلہ لیا جائے اور سب کو جو ان کی خواتین ان کو باندھی بنا لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے تمام کافرین کو جمع کیا اور ان سے خطبہ دیا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آپ سب کو یاد ہے جو بد سلوکیاں 53 سال کم و بیش کی گئی ہیں انہیں سب یاد ہے، اور انہیں یقین ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہونے والا ہے کہ تا قیامت پھر کوئی مسلمانوں کی طرف میری نگاہ سے دیکھے گا نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اخن کریم، کہ آپ تو رحمت والے بھائی ہیں، وہ ابن اخن کریم، اور رحمت والے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے رحمت کی ہی امید رکھتے ہیں۔ اتنی تکلیف آزمائش کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم مطلقا، آج کے دن تم پہ کوئی مؤاخذہ نہیں، جاؤ تم سب کو آزاد کیا۔ اس لمحے جب آزادی کا مزہ سنتے ہیں تو وہ مسلمان جو یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم جنگ کریں گے جدال کریں گے وہ بھی حیران ہوتے ہیں، اور وہ کافرین جو یقین کر کے بیٹھے کہ اب تو سر قلم ہونے ہیں وہ یہ غیر متوقع اعلان سنتے ہیں تو فوراً کم و بیش ایک ہی دن میں 2000 کافرین مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام سب کو معاف کرنے کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، پھر حضور فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ فرماتا ہے محبوب ان قریب یہ جو فتح نا، یہ فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آپ کو نصیب ہو گئی۔ اور کیا دیکھتے ہیں آپ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فوج در فوج لوگ آ کے دامن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، تحمید بیان کی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے۔ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا ایک انداز، ایک پہلو ایسا تھا کہ اس نے فتح مکہ بھی کروا دیا، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، اور ہزاروں لاکھوں کافرین مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ایک عظیم فتح کا دن ہے اور مسلمان جو ہے وہ تا قیامت یاد رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے اس پہلو کو لازمی یاد رکھا جائے کہ بعض اوقات بہت سارے معاملات میں جہاں ذاتی مخاصمت بھی ہو آپ معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ لڑائی کا جواب لڑائی سے دینے سے بہتر ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو اس کے نتائج بہت مثبت اور بہتر سامنے آتے ہیں۔ بالکل جی ناظرین کرام، اور یقینی طور پہ بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے علامہ ارسلان صاحب، اور یقینی طور پہ آج کا دن ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی میں یوں کہوں کہ اگر سر فخر سے بلند کر دینے والا دن ہے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ امت مسلمہ جب بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کو سنتی ہے تو یقینی طور پہ ان کا سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے صرف اچھی گفتگو اور اچھا اخلاق ہی جو ہے وہ کئی کفار کو مسلمان کر سکتا ہے۔ تو بغیر تلوار کے بھی جنگ ہو سکتی ہے، چاہے پھر وہ زبان کی جنگ ہو، وہ قلم کی جنگ ہو، وہ دین کی جنگ ہو، وہ ایمان کی جنگ ہو، وہ اعتماد کی جنگ ہو۔ تو جناب عالی یہاں وقت ایک بریک کا وقفہ لیں گے۔ اچھا جی، وقفے سے پہلے ہم لیں گے کلام، تو جناب محمد علی نقشبندی صاحب کی آج پرسوز آواز میں ہم سنیں گے کلام۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں علی بھائی؟ جناب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہترین سا خوبصورت سا کلام انشاءاللہ آپ کو کی طرح سناتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے دوست
جناب محترم محمد امجد صابری مرحوم کے حوالے سے جناب جو کلام انہوں نے پڑھا تھا دعائیہ کلام میں پیش کرنے کی تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہاں ان کی مغفرت فرمائے کیونکہ عنایت بھائی کے دہلی میں ساتھی بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. درود پاک نظران تمام حاضر و ناظرین پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اماد علی بابارک وسلم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے عطا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے دوبارہ ہوگی ملاقات. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی رمضان نشریات. کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی، لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ
गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमजान नशरियात करम है रमजान में। आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ से बराह रास्त, और हम मौजूद हैं इस वक्त निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड पर। और यकीनी तौर पर नशरियात का जो हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर मामला है उसमें बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। तो आज भी हमारे दरमियान अदाकार मौजूद हैं, फनकार मौजूद हैं, और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अली भाई की नाते सुन रहे हैं, जनाब अल्लामा अरसलान से गुफ्तगू हो रही है। और इसी तमाम तर चीज़ों में मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का, बिलखुसूस ग्लेमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अलबदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज सीरमाल हाउस, लासीफा ब्रेड, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज और ज़यान रेजिडेंसी का। उसके अलावा सहरी का एहतमाम करते हैं जी बिग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफटॉप रेस्टोरेंट। रोजाना की बुनियाद पर अली भाई यहाँ सहरी कर रहे हैं, कुलचे, कभी पराठे, कभी नान। अली भाई मजा तो आपको आ रहा होगा। बेशक। अल्लाह अकबर। कैसी सहरी रही है आपकी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा, तारीफ करें। अल्लाह सबसे बड़ा है हजरत, इसका हजरत अल्लाह अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह सबसे बड़ा हजरत। माशाल्लाह, मेरे लिए सबूत ही बेहतर है। मेरे लिए सुकून ही बेहतर है। आपके लिए सुकून बेहतर है। जिंदाबाद। सही कह रहे हैं माशाल्लाह। जनाब अली, आज तो हम जी हाँ सही फरमाया आपने। अच्छा, वो आपने एक का नाम नहीं लिया जनाब, स्पॉन्सर का लिखा हुआ होगा, रूहानी तौर पे लिखा हुआ हमारे दिल के अंदर जी। चाय का एहतमाम किसकी जानिब से? अच्छा, चाय का एहतमाम होता है जी इनायतुल्लाह। ये इनकी जात के चक्कर में भूल जाता हूँ, क्या नाम होता है अल्लाह। क्या नाम था? कमरानी। इनायतुल्लाह कमरानी पिलाते हैं रोजाना हमें पीने का पानी। इनायतुल्लाह कमरानी साहब जो है तो इनायतुल्लाह कमरानी साहब के हाथों की जो चाय होती है वो बहुत मजेदार होती है अगर वो हाथ धो के बना ले तो। लेकिन यकीन मानिए कि उस चाय में जो लुत्फ है ना, वो जो नींद उड़ाती है, वो मजे को दोबारा कर देती है। जनाब अली, बड़े के मेहमान की जानिब, और मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूंगा अब शहर हैदराबाद में जो आर्टिस्टों की बढ़ती हुई तादाद है और घटता हुआ काम है उसके ऊपर। नासिर साहब, आप तो शुरू करूंगा बात को। हम ये देखते हैं कि शहर हैदराबाद का जो आर्टिस्ट है वो बड़े चैनल्स पर नहीं पहुंच पाता। एक बहुत कलील तादाद है जो चली जाती है, लेकिन बहुत कसीर तादाद है जो रह जाती है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न तो जैसे अभी काम जो है ना, वो एक तो ग्रुप बंदी शुरू से हमारे पीटीवी के दौर से ग्रुप बंदियां हैं। दूसरी बात ये है कि काम अब पहले काम होता था पेमेंट के ऊपर, अभी आपको जो है ना पैकेज देते हैं, भाई ये पैकेज है, ये है वो। काम मकसद बजाय आगे बढ़ने के पीछे की तरफ जा रहा है। हम पहले 5,000 8,000 रुपये पर डे लेते थे, अब वो कोशिश करें कि 3,000 2,000 रुपये में काम करा लें। बड़े चैनल्स के ऊपर हमने काम किया, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई इतना काबिल और फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने बेनतहा काम किया, पश्तो, सिंधी, उर्दू सब ज़बानों में, और बड़े चैनल्स पे काम किया। उस ज़माने से 20 साल 15 साल पहले जो काम हम करते थे, जो पेमेंट आज उसकी दुगनी तिगनी होनी चाहिए ना, अब उसे दुगनी तिगनी कम कर दी। अल्लाह।
اور میں تو ایسا آرٹسٹ ہوں, میرا نام آئے گا نا تو پہلے لوگوں کے ذہنوں میں فکر آ جائے گا ناصر, یار وہ پیسے, یار نہیں ناصر کو چھوڑو, اب میرے کو لیتے نہیں. اب لوگ کام کر رہے ہیں, مجھے اس بات کا بھی بڑا شکوہ ہے کہ یا تو ہمارا خدا سے اعتماد اٹھ کے, اللہ توبہ نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کام کریں گے, اگر ہم نے نہیں کیا تو کوئی اور کر لے گا. ارے بھائی کوئی اور کرے گا, تمہارا نصیب تو نہیں جائے گا نا, جو تمہارا نصیب اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا. تو لوگ پیسے دے کے بھی کام کر رہے ہیں, مقصد آرٹسٹ کو پیمنٹ ملنی چاہیے نا, وہ دے کے کر رہا ہے, 8-10 ہزار روپے دے کے کریکٹر لے رہا ہے, اس میں ایکٹنگ. تو یہ چیزیں, ان چیزوں نے ہمیں تباہ. شوقین رائٹر آ گئے, شوقین ڈائریکٹر آ گئے, شوقین آرٹسٹ آ گئے, تو شوقینوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے, جس کا حق بنتا ہے, آپ کے نعت خوانوں میں بھی ہیں, تو ہر جگہ اس ٹائپ کے. میں تو نعت خوان نہیں ہوں, ایسے 1-2-3 پروگرام میں نے دیکھے, اٹینڈ بھی کیا میں نے, تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ یار یہ تو ہر جگہ جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں پکڑ کے. تو یہ چیزیں غلط ہے. کام تو ہے لیکن کام کا سسٹم کوئی عجیب سا ہو گیا جو ہمارے سمجھ سے باہر. کام کچھ مشکل نہیں, عزم مصمم چاہیے. پھول صحراؤں میں بھی بے شک کھلا سکتے ہیں آپ, اور یہ ایک پھول جو میرے خیال میں اس حیدرآباد شہر میں کھلا رہے ہیں وہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم, بالخصوص عزیر خاندی, ردیب لطیف نیازی, جو کہ ایک حیدرآباد کی اپنی فلم بنا رہے ہیں زوار کے نام سے. تو ذرا رفیق صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ حیدرآباد کی سب سے بڑی فلم زوار جو بننے جا رہی ہے, اس میں آپ کا بھی کردار ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو زوار کی کوششیں اور کاوشیں ہیں یہ کیسی لگی ہیں آپ کو؟ تو یقیناً یہ نہ صرف میرے لیے ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ سارے حیدرآباد کے جو ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں, سینئر آرٹسٹ ہیں, یا نوجوان ہیں, یوتھ ہے, نئے بچے ہیں, نئی بچیاں ہیں, یہ سب زوار ٹیم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ اس طرح اور بھی لوگ آئیں اور انویسٹر آئیں. ٹھیک ہے, حیدرآباد کا نام روشن کریں. جب وہ آئیں تو ابھی تو ظاہر ہے یہ عزیر بھائی اور اپنا نیازی بھائی یہ دونوں بڑی محنت کر رہے ہیں, اچھا اسکرپٹ ہے, اچھی ڈائریکشن ہے, کیمرہ ورک جو ہے ڈی او پی یہ خود کر رہے ہیں, ایڈیٹنگ خود کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. اچھا فلم, ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ زیادہ بولتا ہے ہم کیا بولتے ہیں, یار یہ تو بڑی فلم ہے, ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ جو فلم بن رہی ہے یہ آسان کام نہیں, اور یہ بڑی بجٹ کا, اور ہمارے ہاں انویسٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مالی طور پر پرابلم ضرور ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ اچھا کام ہوگا. آج نہیں تو کل انویسٹر بھی آئیں گے, بڑی بڑی فلمیں بھی بنیں گی, اور حیدرآباد کو موقع ملے گا, ملنا بھی چاہیے. ہماری بھی یہی خواہش ہے, اس لیے کہ ہم حیدرآبادی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کا نام نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں روشن ہے. اچھا, لوگ باغ پہ جب یہ زوار فلم بن جائے گی لوگ یوں کریں گے, بابا بڑی فلم ہے, بڑی فلم حیدرآباد کی, ایسے کریں گے نا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا انشاءاللہ. اللہ صحیح ہو گیا جی. ناظر صاحب یہی سوال آپ سے کروں گا, جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, دیکھیں جہاں پہ مالی معاملات کم ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ہماری جو ذاتی اسٹرگل ہے وہ بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. تو کتنا اسٹرگلنگ فیز دیکھتے ہیں حیدرآباد نیوز کی اس ٹیم کا جو کہ زوار بنا رہی ہے؟ زوار کے دیکھو, جیسے رفیق صاحب نے بات کی کہ ظاہر ہم لوگ حصہ ہیں اس کا, تو عزیر نے بات کی مجھ سے کہ ناصر بھائی ہم لوگ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں بڑا, لیکن اس میں ہمیں اچھے آرٹسٹوں کی ضرورت ہے. لیکن اس میں ضرورت ہے, لیکن اس میں کاپریشن کی بھی, اپنائیت کی بھی ضرورت ہے. تو جب ہمارا کام چلے گا آگے, ہم نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فلم بنے گی نا تو یہ واقعی فلم حیدرآباد کی ایک بڑی فلم ہوگی. اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ رائٹر, ڈائریکٹر, ڈی او پی اور سارا جو ایکوپمنٹ ہے وہ حیدرآباد کا ہے, لوکیشن حیدرآباد, آرٹسٹ حیدرآباد, سارے لوگ جب حیدرآباد سے ہیں, اور حیدرآباد سے جب یہ فلم جائے گی تو کراچی میں یا لاہور میں جو فلمیں بنتی ہیں تو ان لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ حیدرآباد میں بھی لوگ ہیں کام کرنے والے, اور لوگ کام کو سمجھتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے حیدرآباد کے لیے, اور خاص طور پہ
عزیر کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زہیب لطیف کے لیے ایک چیلنج کو انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا، اور اللہ سے یہ دعا ہے ہماری آج اس رمضان کے برکت مہینے کے آخری عشرے میں کہ اللہ پاک اس فلم کو کامیاب کرے، ان کو حوصلہ دے اور ان کو فائنینسی طور پر ان کو فائدہ ہو، اور یہ فلم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، تاکہ جن لوگوں نے جو نیگیٹو اس میں وے میں بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے، ان کا بھی منہ بند ہو۔ لیکن حیدرآباد کی ایک بڑی فلم ہے، انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سب آرٹسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ انگوٹھے میں نگینے کی طرح فٹ ہوں۔ واہ بھائی واہ، ویسے بھی جو ہے وہ ہم لوگ یعنی کہ جو حیدرآباد نیوز کی ٹیم ہے وہ بہت بڑی فلم ہے، ہر کام کر لیتی ہے جی، تو یقینی طور پہ فلم بن جائے گی۔ اچھا رفیق صاحب، آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں فلم کے اندر؟ جو ہیروئن ہے جی اس کے باپ کا کریکٹر، واہ، ایک چھوٹا سا کریکٹر ہے لیکن بہت اچھا ہے، اس میں ایک موقع ہے کام کرنے کا، پرفارمنس کرنے کا ایک موقع ہے، بڑا نائس کریکٹر۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو یہ فلم ہے اس میں آپ کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اسی کوئی منفرد چیز ہے جو آپ کو بڑی اچھی لگی ہو کہ ہاں بھائی؟ نہیں دیکھیں، فلم ہے ہی منفرد، ٹھیک ہے، ہم لوگ تھیٹر میں کام کرتے ہیں، اسٹیج پہ کرتے ہیں، ٹی وی پہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حیدرآباد کی فلم یہ عام نہیں ہے، یہ ہے ہی منفرد، اسکرپٹ نیا ہے اور بہترین ہے، انٹرسٹنگ ہے، اس میں ایکشن بھی ہے، رومانس بھی ہے، کامیڈی بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلم کی ڈیمانڈ ہی یہ ہوتی ہے نا، وہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ اور پھر یہ جو عزیر خان جیسے لوگ اور اپنا نیازی بھائی، یہ تھوڑا جنونی لوگ ہیں، جس کو ہم سندھی میں چریا بولتے ہیں، اردو میں ہم لوگ پاگل بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پاگل لوگ ہیں۔ حالانکہ ان کو کوئی اچھا انویسٹر مل جائے، جسے ہم لوگ پروڈیوسر کہتے ہیں، کوئی اچھا سا پروڈیوسر مل جائے نا تو یہ لوگ کمال کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ جی۔ چریا تو ویسے ہی ہے، واقعی میں چریا ہے جی، جب کام کرنے پر آتے ہیں نا، جب پھرکی گھوم جاتے ہیں۔ اگر ہم محبت سے اب ان کو آئندہ چڑیا پکاریں ان معنوں میں کہ یہ بہت جو ہے وہ مضبوط ہیں اور کام کے لیے، تو اجازت ہوگی اس بات کی؟ یہ چریا کے گھوڑے بڑے کے گیا نہیں، اس کی میننگ بتا دی کس ضمن میں کہا جا رہا ہے، تو اگر اس کی اجازت مجھے بھی دے دیں تو میں بھی کل سے یہ کہ کو اجازت نہیں ہے اللہ صحیح ہو گیا جی۔ اچھا اپنا ناصر صاحب، مجھے آپ بتائیے گا، آپ کا کردار ہے فلم کے اندر، کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ کردار تو ظاہر ہے اب ڈائریکٹر یا ہمارا ڈی او پی جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں، یا فلم ریلیز ہو تو پھر لوگ دیکھیں، آڈینس دیکھیں، اسے بتائیں۔ آرٹسٹ تو بیچارہ کام کرتا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آرٹسٹ کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو جنونی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کام کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں اپنے کردار سے۔ جو کردار ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے اولاد کی طرح پیارا ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے، تو انسان کتنا پیار کرتا ہے، اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں نا، ایک ہی بات ہے کہ اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، جب میں کوئی کریکٹر کرتا ہوں تو میں اس کو اپنے اولاد کی طرح سمجھتا ہوں اس کریکٹر کو۔ تو میں اس میں ایک انسپیکٹر کا رول کر رہا ہوں، انسپیکٹر خان کا۔ صحیح ہے۔ ہاف فرائی یا فل فرائی؟ فل کی بات نہیں کریں تو وہ تو جب یہ تو ظاہر ہے ایک سیکریٹ ہے نا، ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن جب یہ پردہ اسکرین پہ آئے گا کام اور لوگ دیکھیں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کہاں تک اچھا کیا، کہاں تک برا کیا۔ صحیح ہے، 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 صحیح ہے۔ اچھا رفیق صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اگر اپنا کوئی کردار کا کوئی ڈائلاگ یہاں بولیں۔ مجھے یاد نہیں ہے اور پھر ہم نہیں چاہتے کہ یہ فلم کے ڈائلاگ جو ہے نا وہ آن ایئر ہو جائے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اچھا سب سے اچھا سین کون سا ہے فلم میں آپ کے حساب سے؟ سین کون سا سب سے اچھا سین کیا ہے فلم کے؟ آپ کا جو سین ہے سب سے اچھا سین کون سا آپ کا؟ نہیں، وہ ایک مرڈر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے جب وہ سنتا ہے تو پھر باپ جو پرفارمنس کرتا ہے، جو اس کی چیخیں اور اس کی پکار ہوتی ہے، جو اس کا درد محسوس ہوتا ہے،
मेरे ख्याल में वो एक डिफरेंट है मेरी लाइफ में। सही हो गया जी। अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं, मैं करता हूँ। अच्छा जी नासिर साहब, आप भी जाने पाऊंगा, यही सवाल आपसे, आपका सबसे अच्छा सीन कौन सा है? ज़ाहिर फिल्म पूरी तो शूट नहीं हुई ना, तो जो हमने सीन किए, मेरा जो मेरी बेटी अगवा हो जाती है और वो मिलती है, वो सीन भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो हमने फार्म हाउस पे विलन के साथ मेरा सीन था, जब मैं उसे पैसे लेने आता हूँ, वो भी बड़ा अच्छा सीन था। तो अब सीन बहुत अच्छे तो रहते हैं मेरे, जो होने इंशाल्लाह वो और भी खूबसूरत होंगे इंशाल्लाह। तो काम अभी है हमारा। सही हो गया जी। अल्लामा साहब एक सवाल करूँ मैं आपसे, हम आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं धूम चली हुई है। धूम ये है कि भाई जो अपना ड्रामों में निकाह हो जाता है, जब ड्रामा हो रहा है, शादी की तकरीब हुई, अली भाई हीरो है, कोई हीरोइन आई, निकाह हो गया, आमीन। तो ये जो निकाह हो जाता है तो इसमें शरई तौर पे कहा जा रहा है कि जायज़ होता है, तो क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई शरीयत में निकाह हो जाता है, ऐसा है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 1184, हदीस नंबर भी बता दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संजीदगी से की जाएं या मजाक में की जाएं वो मुनआकिद हो जाती हैं। उनमें से एक निकाह, दूसरा तलाक, तीसरा रिजात कहते हैं कि अगर किसी ने एक तलाक दी है, अब रुजू का हक़ बाकी है, तो वो मजाक में या संजीदगी में रुजू करना चाहता तो हो जाएगा। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही फरमा दिया कि मजाक में भी जो निकाह किया जाए वो हो जाता है, तो आप चाहे ड्रामे में करें, चाहे ऐसी निजी महफिलों में बैठ के करें, निकाह के जो शराइत हैं अगर वो मुकम्मल हैं, इजाब व कबूल एक ही मजलिस में, और सीगा माजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब लड़का कहता है कि मैंने आपसे इतने महर में निकाह किया, लड़की ने कहा कबूल किया, ये किया जो माजी का सीगा, तो माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ हो और दो गवाह मौजूद हो, अगर इन शराइत के साथ निकाह किया जाता है तो निकाह बिल्कुल मुनाकिद हो जाएगा। अब इस पर ज़ाहिर जो आप फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मसला चल रहा है, तो मैंने भी 2-4 दिनों से देखा इस मसले को। तो सबसे पहली बात तो है कि जिन मुफ्ती साहब ने मसला बयान किया है, मैं बज़ात ख़ुद उनसे वाकिफ़ हूँ, एक बहुत साहिब इल्म शख्सियत हैं और शरीफ़ुन्नफ्स हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि वो जो टीवी के कुछ एक्टर्स वगैरह हैं, दो का ख़ास करके नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, एक तो कमेंट मैंने आज ही पढ़ा है, मौलवी साहब की फ़ोटो लगी है और वो तंज़िया दो रहे मौलवी साहब को। एक साहब ये कह रहे हैं कि मौलवी साहब मैंने तकरीबन 97 निकाह किए हैं, मेरी बीवियाँ कहाँ हैं? अब मौलवी साहब से पूछ के आपने निकाह किया था, मौलवी साहब से बीवियाँ पूछ रहे, आपको शर्म नहीं आती? मौलवी साहब का काम है कि वो एक दीनी मसला बयान करें। उन्होंने, मैंने हदीस पढ़ के बता दी ना, मतलब एक्टर कोई कितना ही बड़ा हो या कोई किसी भी ओहदे का कितना बड़ा हो, हदीस के आगे उसकी हैसियत क्या रही? उन्होंने फरमाया निकाह मजाक में भी हो जाएगा, तो हो गया। आप तावीलात क्यों ढूंढते हैं, आप तवजीहात क्यों निकालते हैं? हो गया। आप जब ड्रामा बना रहे होते हैं, जो फॉर्मेट होता है आपके ड्रामे का, कहानी लिखी जाती है मुकम्मल, सुनाई जाती है, सब कुछ होता है ना, उसमें जितने भी दीनी पहलू आते हैं या दीनी आपने जो करेक्टर अंदाज क्लियर करना होता है, आपने कभी किसी मुफ्ती से पूछा कि हम ये करेंगे, इसकी इजाज़त है? आपने पूछा था? आपने पूछा कुछ नहीं, आपने अपनी मर्ज़ी से कर लिया। अब आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ किया और शरन को मुनाकिद हो गया, तो आप चाहते जवाब आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए जी? इमाम अहले सुन्नत के सामने तो किसी ने आके ये कहा था फलां शख्स बड़े ओहदे पे बैठा है, आप उनके लिए कोई शेर लिख दें पैसा वाला, तो आपने उस वक्त ये शेर लिखा था कि करूँ अहले मद है दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, मैं किसी बड़े ओहदे वाले के लिए कुछ लिखूँ, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा कि उनकी मर्ज़ी पे चलूँ मैं? तो ये जो एक्टर इस पर तंज कर रहे हैं मौलवी साहब का, फिर आज ये कमेंट पढ़ा उस पर, यानी वो तंज वाला है, तंज चला, उनको शर्म नहीं आ रही किसी को। वो एक कह रहे थे कि अगर कोई ड्रामे के अंदर किरदार में फौत हो जाए तो क्या उसकी बीवी को इज्जत करनी पड़ेगी? अब मुझे इसीलिए बताएं कि जितना कुछ आपने किया है निकाह के ताल्लुक से, फिज़िकली जो शराइत पाई जानी चाहिए निकाह के ताल्लुक से, बहुत शुक्रिया, जो शराइत पाई जाती है निकाह के ताल्लुक से वो तमाम फिज़िकली मौजूद हैं, तो आपको लग रहा है कि वो निकाह मुनाकिद नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक बात ये बताएं कि फिज़िकली आपको अच्छी कोई सही बंदूक में दे दूँ, गोली है उसमें, और आप ड्रामे के अंदर ही सच में किसी के पेशानी पर रख के चला दें, अब मैं पूछूं कि बंदा मरा नहीं मरा, तो आप क्या जवाब देंगे? गोली सच में चली है, बंदे को लगी है, तो बंदा मर गया ना, ड्रामे में बाहर हो गया ना मुनाकिद। एक चीज़ शरअन जो जिसके शराइत हैं वो पाए गए हैं, वो हो गई तो हो गई ना, अब उस पर मजाक करना ही करना, जो आपका सब्जेक्ट है वो करें। इसलिए कहते हैं कि हर शख्स की राय उसके शोबे में काबिल कबूल होती है, आपका शोबा नहीं है, आप ड्रामे बनाते हैं, दीनदारी आपका शोबा नहीं है। मैंने, अच्छा मेरे पास तो एक मसला फतवा का ये भी आया, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, एक लड़की है उसने एक मसला भेजा कि हम यूनिवर्सिटी में
मैं एक लड़का, मुझे लड़का पसंद था। मैंने 5 लोगों की मौजूदगी में, 5 में से 2 खवातीन थी, 3 लड़के थे, उनकी मौजूदगी में मैंने उस लड़के को कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, क्या तुमने कबूल किया? मैं तुम महर भी माफ़ करती हूँ। लड़का था साहिब इल्म शख्स, वो जानता है कि अगर ये गवाहों की मौजूदगी में मैंने हाँ किया निकाह हो जाएगा। उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये जो पैसे वगैरह होंगे मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी होगी, मैं इसमें से भी हिस्सा दिलवाऊंगी, क्या कबूल किया तुमने? उसने तभी कुछ नहीं कहा। लड़के ने ऊपर से कहा कि मेरा इरादा एक से ज़्यादा निकाह का है, तुम अगर इसकी इजाज़त दोगी तो मैं निकाह करूँगा। लड़की ने कहा मुझे कबूल है, अब बताओ तुमने कबूल किया? लड़के ने कहा हाँ मैंने कबूल किया। ये कहने के बाद जब लड़के ने कबूल किया, लड़के से फिर पूछा कि तू वाकई सच में निकाह कर रही है? तो उसने कहा मैंने जो बातें करनी थी कर दी, यानी उसने हाँ या ना कुछ नहीं बोला। तो अब उसके बाद मुफ्ती साहब के फतवा याद है कि इस तरह से निकाह हो जाएगा। तो उस मसले के जवाब में लिखा है, फतवा मेरे पास पड़ा है कि निकाह मुनआकिद हो गया इसलिए कि लड़की ने खुद अपनी खुशी से उसको इजाज़त दी थी कि भाई मैं निकाह करना चाह रही हूँ और जो शर्त तू रख रहा मुझे कबूल है। और लड़का कहता ठीक है मैंने भी किया, तो अब गवाह भी मौजूद थे, तो हो जाएगा निकाह? बोला जी हो जाएगा। तो निकाह तो मुनआकिद हो गया, यूनिवर्सिटी हो जाएगा जी। देखें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये व्हाट्सएप वाला मसला भी सही पूछा आपने, फोन पे भी निकाह होता है। निकाह के लिए 2 चीज़ें आजकल चल रहा है ना भाई, वो वहाँ से बोलती है, वो यहाँ से बोल रहा है, भाई हो गया। उसके लिए शर्त है, एक शर्त होना लाजिम है, क्योंकि पहले फ़ोन पे निकाह होते थे, बड़े मसाइल थे। निकाह एक ही मजलिस में होना चाहिए ताकि लड़का भी मौजूद, लड़की हो गवाह, सबके सामने हो, गवाह भी मौजूद हो। अगर ऐसा हो कि लड़की कहीं और मौजूद है या लड़का कहीं और मौजूद है बाहर मुल्क में, तो फिर एक वकील बीच में होगा मौजूद। अगर लड़का वहाँ मौजूद है तो लड़की वाले अपना एक वकील वहाँ भेजेंगे, जो उनके वहाँ गवाह होंगे, उनके सामने निकाह होगा, वो उसकी वकालत करेगा हाँ भाई मेरे सामने ये हुआ है, और वो आके इस बात की गवाही यहाँ दे दे कि हाँ भाई वकील बन के गया था, निकाह मैंने कहा ये हो गया, तब हो जाएगा। वकील से मुराद ये लॉयर नहीं है, ये वकील जी हाँ लड़की का वकील। ये वो वकील होती है जिसको वकालत दी जाती है, इसको नाइब बनाया जाता है, ये वो होता है, ये वो वकील नहीं है कोर्ट वाला। तो इस तरह से चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे मोबाइल पे हो, ये हो सकता है, इसकी इजाज़त है। लेकिन फिर उस मसले की तरफ आके बात को ख़त्म करूँगा कि अगर निकाह चाहे ये ड्रामे के कैरेक्टर में कर रहे हैं, जो शराइत है निकाह की वो पाई गई, निकाह मुनक़िद हो जाएगा। अगर जिसने एक से ज़्यादा निकाह किए हैं अब वो उनसे बात करें, उनके जो हुकूक बनते हैं नान नफ़का सुखना वो सब देने पड़ेंगे बीवी को बिल्कुल। अगर वो एग्री नहीं है तो ठीक है, इज्जत के साथ तलाक देकर फिर वो जो उनकी इद्दत बनती है वो भी वो अदा करेंगी, वो भी उन पर लाज़िम है, वो भी उन पर लाज़िम है। ये बड़ा सीरियस मसला है वाकई में, और बड़ा नाजुक सूरत हाल है। इसको यूं वो अर्ज करना चाहूँगा, रमज़ान का महीना बाबरकत मस्जिद में बैठा हूँ बिहम्दिल्लाह, और 5-6 सालों से कमोबेश ट्रांसमिशन में हूँ। कोई बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं बोली तालिब इल्म जिनका, लेकिन आज पहली मरतबा जो कमेंट्स पढ़े उस पर दुख हुआ। इसलिए मैं वो जो एक्टर साहिबान ये कमेंट्स लगा रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन मुफ्ती साहब के लिए आप ये कमेंट्स लगा रहे हैं वो बड़े शरीफ आदमी हैं। आप मुझ जैसे कभी बात करें ना, इंशाल्लाह आपको दिन में तारे में दिखाता हूँ इनके मसाइल बात होती है। आपको मजाक लगा, आप अपने मनसब में जो कर रहे हैं अच्छा बुरा वो आपका है। आप किसी शरीफ आदमी की इज्जत नफ्स को मजदू करें पब्लिकली, फिर जब हम करेंगे ना आपकी तो फिर आप मुँह छुपाएंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। जी जनाब आली, लेकिन ये बड़ा ही संजीदा मसला अल्लामा इरफान साहब ने जो बयान किया, अली नशबंदी साहब सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, मगर जो भोगते हैं उलमा इकराम पे उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपने अंसार भाई कहा कि सोचना पड़ेगा, तो माजी में इन्होंने भी ऐसे कई निकाह किए हैं क्या? हाँ क्या बात है भाई, नहीं वो आपने तो एक स्टोरी बना दी कि अली भाई जैसे हीरो है या कोई हीरोइन। अरे भाई कब, मैंने तो आमीन भी कह दिया, क्या कब का चक्कर है बता भी दो मेरे को। ये तो आपको याद आया, मुझे घर जाके पराठे भी खाने, तो आप कवर कर रहे हैं इस बात को जनाब अली। कवर करना पड़ेगा ना हज़रत, क्या करें। लेकिन अब तो चला गया ना, अब तो कोई मसला नहीं, वापसी मंगवा लेंगे, फिर ठीक हो गया। अब वो देखे घर में गुस्से अगर कोई चीज सर पे पड़े तो समझ जाएगा। हज़रत ये इमामा शरीफ मोटा वाला है, इसमें कुछ बस बता दे जनाब आली, ठीक हो गया। नासिर बुनैर साहब माशाल्लाह एक बेहतरीन सनाखा भी, बड़े हुजूर की बारगाह में बड़े मोहब्बत और अकीदत के साथ नात पढ़ते भी हैं, तो अगर इजाजत हो तो नात शरीफ सुनी जाए। आपको कौन मना कर सकता? अल्लाह सुभान अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने, आए हाय हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या, सब लोग कलम तेरे हैं, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। सुभान अल्लाह जी। दरूद जो देख रहे हैं वो भी और जो यहाँ मौजूद हैं सब दरूद पढ़ें। और मैं सनाख्वा तो नहीं हूँ लेकिन मोहब्बत है मुझे हुजूर की शान में अकीदत के एक दो फूल निछावर कर देता हूँ। तो हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी
बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से आपने पढ़ा। अल्लाह करीम इस नाते पाक के सदके में अल्लाह करीम हम सबको जितने लोग बैठे हैं जो हुजूर के रोज़े पे जाने के ख्वाहिशमंद बैठे हैं, या अल्लाह आज की शब के सदके में सबको हाजिर का अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊंगा, क्योंकि आपसे हम सवाल लीडर होकर करते हैं, क्योंकि आप आलिम भी हैं, लीडर जी हाँ, लीडर या लीडर हजरत लीडर है हमारे। अच्छा लीडर है। हाँ, और लीडर भी है। एक लीडर होता है, ये है लीडर हमारे आलिम। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा से हम सवाल जब करते हैं ना, वो कहते हैं जी मगर ये कहते हैं बस वो मगर ये यहाँ कोई सी भी ट्रांसमिशन हो हम इनसे सवाल करते हैं, हम लिखे हुए सवाल नहीं करते, जो जहन में आता है करते हैं, हमें अच्छा जवाब देते हैं कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर। अल्लाह मतलब ये आजकल जो आपने देखा होगा, खास तौर पे किसी पे मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आपसे कि कीजिएगा भी नहीं अटैक, आपकी सेहत नहीं अटैक। जी जी बिल्कुल ठीक है। कुछ सराखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात खानों की मैं बात नहीं करूँगा, नोट खानों की मैं बात करूँगा। वो आजकल क्या चलता है, वो आपने देखा होगा रिम जिम वो ऐसी रिम जिम करते कि भाई बड़ा ज़बरदस्त रक्स कर रहे होते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, नात के जो मजाक मुख्तसरन क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपने खुद ही कह दिया, नात खाने की तो बात करूँगा, नोट खुआ। जब आपने मान लिया कि नोट खुआएं तो फिर तो बात ही वाज़ेह हो गई। और वो जो रिम झिम है, जब तक वो रिम झिम हो रही है तो वो नाच रहे हैं। नात खाने के मुक़द्दस शोबे को वो इन लोगों ने बदनाम किया। एक बड़ा मुक़द्दस नफीस शोबा है, और इसी इनकी वजह से भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ें आती हैं, ये इनके अपने ज़ाती फैसले हैं, मामलात हैं, लेकिन होता क्या है उसके बाद भी सारे के सारे मामले हमारे खाते में हैं। उलमा इस पे पहले भी एक्शन दे चुके हैं। मुनीब रहमान साहब की शख्सियत है, मुफ्ती अकमल साहब हैं, ये तो बज़ाहिर इस पर किताबें लिखी है, फतवा है कि इस तरह के नात खानों को स्टेज से उतारें आप। इनको तो मौका ही नहीं दिया। इनके नात खुआ वाकई नहीं है, ये नोट खुआ है, और फिर जिस अंदाज में नात पढ़ने वो तरीका है ही नहीं। आप खुद एक बात सोचिए, जिस अंदाज में ये नात पढ़ने, अगर बारगाह रिसालत में नात पढ़ने का मौका ऐसे मिल जाए कौन पढ़ सकता है, किसकी जरूरत है? तो ये खुद सोचे ना, तो ये प्रोफेशनली जो ना मतलब एक्टर बने हुए नात खान ये एक्टिंग कर रहे हैं साथ। अब वो जाली मुंडे जो है जाहिल पीर साहब होते हैं, वो अच्छा वो भी हिल होते हैं, और जो नाप रहा है वो अरे भाई क्या हो गया, तो हवा भर रहा है साइकिल के अंदर, वो पंप लगाया हुआ है, कौन सा चक्कर है यार। साउंड की जो धुन बनाई हुई होती ना, उसकी वजह से वो डांस होता है। आपको कुछ वक्त पहले याद होगा जिक्र वाली नात खानी हुई थी, उस पर बच्चों को नाचते हमने भी देखा, क्योंकि वो साउंड ऐसा आ रहा ना, तो इन्होंने बनाया ऐसा माहौल। अब नात पढ़ें, सोच के साथ पढ़ें, एक दिक्कत के साथ, कैफियत आ रही हो, आपको लगे कि बाल के सादत में मौजूद हूँ, और उन अशार का तर्जुमा, उसका मफहूम आपके जहन में हो, तो आप पर एक कैफियत आ रही होती है। लेकिन बहुत सारे नातखा जो ऐसे हैं अब नए जो आ गए, वो इन चीज़ों से बिल्कुल हट गए, इस वजह से जो है ये माहौल थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन ऐसे नातखानों की तो ज़्यादा मजम्मत करेंगे, इनको तो महफिल में बिल्कुल लाना नहीं चाहिए, इनका तो बिल्कुल बाइकआउट किया जाए। बिल्कुल ठीक कलाम जो है वो हमारे सरकत आज बिल्कुल। ये कुछ नोट खां हजरात जो है हमारे उलमा कराम के जो है तजलील करते हैं, हजरत इनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, उलमा की तारीफ में, उनके मनसब के लिए तो कुरान में हदीस में वाज़ेह मौजूद है बातें, कई रिवायात मौजूद हैं। नात खानों के लिए एक हदीस बताया मुझे। नात पढ़ना अच्छी बात है, एक शोभा अच्छा है, लेकिन कोई नस्ल कतई मौजूद है कि जी ये नात खान, ये नात पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का है ना, वो नसर में पढ़ें, आप नज़म में पढ़ें, बयान की सूरत में हो, वो तारीफ होती है।
हर कोई हजरत हसन तो नहीं है, वाहसन कलम तरकत हुआ ही नहीं, वो शेर में पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह मिंबर पे उनके लिए कुछ जगह इनायत फरमाते थे, वो अंदाज ऐसा था। ये वाले नात ख़्वानी थे। अब ये नात ख़्वानी ये जो पढ़े होते हैं वो मिर्चें भी लगती है, इन्हें तकलीफ होती है, इन्हें मिर्चें भी लगती है। नात है भी नहीं, आशिक ने मदनी लाइटों से घर को सजा दिया, ये मिर्चें भी लगती हैं, तकलीफ होती है। ये एक्चुअल में नात तो है नहीं, नात की तारीफ में तो ये चीज़ आती नहीं है। ये तो मतलब किसी पे आप इंडायरेक्टली कुछ कहना चाह रहे हो उस मुखालिफ को, लेकिन ये नात है ही नहीं। मैं किसी को नहीं कहना चाह रहा, जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छा कि वो इंडायरेक्टली किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन जो माहौल है इसमें पॉजिटिव चीज़ को बड़ा नेगेटिव बना दिया जाता है। तो मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आनी नहीं चाहिए। और इस तरह के लोग वो कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती वो, ये बैठे बैठे इनको वो मस्जिद, अच्छा ये चीज़ें, ये ख्यालात, ये कलाम जो ना ये मस्जिद में बैठ के लिखे नहीं जाते। अलियाज़ु बिल्लाह, मैं क्या कहूँ, ये वॉशरूम में बैठे होते हैं तब आते हैं ख्याल, उसके बाद वो बाहर निकल के फिर पूरा कलाम बना के बोलते हैं जिसको ऐसे पढ़ना है, और फिर उनकी वीडियो देखें, उनकी एक्टिंग देखें, आपको लग रहा है कि नात ख़्वानी हो रही है। तो इनको फिर वही बात है मेरा, मैं किसी और को गाँव के अगर 100 कोड़े लगे ना लगे, हुकूमत इस्लामी हो तो इनको तो 250-250 कोड़े लगने चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने बड़ा बदनाम किया शोबे को। हाँ, वो मतलब कर रहे होते ना, जब मैना बिठाई होती, एक आई थी कि जन्नती है मेरा बकरा, तो वो भी जी हाँ, तो इस तरीके वो है अकीदत से, एहतराम से पढ़ना। अच्छा, नात पढ़ने वाला अकीदत से जब नात पढ़ेगा तो सुनने वाला खुद को मक्का और मदीना में महसूस करेगा। ये है नात, बेसिकली है कि अकीदत है ना, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत होगी, चाहत होगी, इश्क होगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि ये नोट कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, ठीक है ना। उसका ज़हन, उसका दिमाग सरकार मदीना के हरम में होगा, तब भी सुनने वाला खुद को उधर का महसूस करेगा और उसके आंखों में आंसू आएंगे। ये हमेशा से ऐसा ही रहा, जैसा फरमा रहे ऐसा ही था। ये पिछले 15 सालों में 10 सालों में कल्चर ये चला है, बड़ा महंगाई बढ़ गई है, दिल छोटा हो गया है बिल्कुल। असल में अच्छा एक मसला और भी है, मैं अर्ज कर दूं अगर वक्त में गुंजाइश हो, एक मिनट लूंगा। जो मजहबी तबका है ना, नात ख़्वानी का हो, मस्जिद के इमाम साहिबान को, इनकी आमदनी वैसे है कम, मैं आपको सही बताऊं। जाहिर है कोई ना कोई तरीकाकार वो ढूंढते पैसे कमाने का, लेकिन उसके लिए अखलाक़े से गिर के कोई हरकत की जाए इसकी इजाज़त नहीं है। ये हरकत अखलाक़े से गिरी हुई है। और अवैस कादी साहब नात ख़्वान बहुत बड़े, उनको मैं इस वक्त अप्रिशिएट करूँगा। कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया, उन्होंने इस वाले कल्चर की बाकायदा मुखालफत की, क्योंकि वो पंजाब गए थे, वो स्टेज पर बैठे हैं, सामने पब्लिक है, ये पूरा जो हिस्सा है नोटों से भरा हुआ था। उन्होंने बाकायदा मुखालफत की कि मैं इस कल्चर की मुखालफत करता हूँ, आइंदा मेरे ऊपर कोई नोट न लुटाए किसी को। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं चलें लाखों रुपए भी होते हैं, वो अपनी फील्ड के इस वक्त रूए ज़मीन पे नंबर 1 पे चल रहे हैं। उनके घर में क्या बच्चे नहीं है, वो वजीरे खाएंगे, कमाएंगे कैसे? वो पूरी नात ख़्वानी लिखें, पढ़ें, करें, कमाने का जरिया क्या उनका? सारे शख्स अपनी फील्ड में कोई ना कोई काम तो करेगा। वक्त किए जा रहे हैं, मस्जिद के इमाम साहिबान की भी तनख्वाहें होती है, जो आलिम दीन है वो भी पढ़ाता दीन, उसको भी तनख्वाह चाहिए। ऐसा तो नहीं है मनोसलवा आ रहा है किसी के पास, तो जाहिर है अवैस कादी साहब भी पैसे दे रहे हैं, तो वो तो जायज़ हैं, वो जो तय करके देते हैं। एक बात ये सही है कि जो आलिम दीन है या जो मौज़िन है या जो हाफिज साहब है, उनकी तनख्वाहें बिल्कुल ना होने के बराबर। इसी दौर में कम से कम 1 लाख तनख्वाह उनकी होनी चाहिए ना, तो फिर ये लोग इधर नहीं जाएंगे। नहीं, मकसद कहने का, देखो ना, इस्लामी मुमलिकत है पाकिस्तान, मस्जिद के पेश इमाम की तनख्वाह तो 10,000 रुपये, और क्रिकेट सिखाने वाले की तनख्वाह 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो कितना तजाद है। इसी चीज़ पर हैदराबाद न्यूज़ ना अपनी नशरियात में मुतालबा कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे कि जो हुकूमत वक्त है ना, वो कम अज़ कम इन इमाम साहिबान को, मौज़िन साहिबान को गवर्नमेंट जॉब्स दे। हाँ बिल्कुल, इनके लिए कमीशन हो, इनका स्केल हो, जब ये 60 साल बाद रिटायर्ड हो तो इनकी पेंशन आना बिल्कुल होनी चाहिए। ये चीज़ें हम लोग नाइंसाफ़ी की इंतहा ये है कि आज से 1.5 साल पहले, क्योंकि मैं जब उस वक्त मेरा ख्याल है 2019 की बात पर, 2019 में बाकायदा, मैं नाम नहीं लेता, मुझे बताया गया था कि एक सिंगर है वो हैदराबाद में कोई शो करके गया था। अब ज़्यादती की इंतहा आप देखें कि उसने 1 घंटा या 1.25 घंटा वहाँ प्रोग्राम किया, और किसी ने मुझे कहा इसने 6 गाने गाए, वो 70 लाख रुपए लेकर गया वो। अवैस कादी के 2.5 लाख लोगों को दिख रहे होंगे, उसके 70 लाख नहीं दिखे किसी को। बात ये, फिर आप जब ऐसे लोगों को इस लेवल पे प्रमोट कर रहे होते ना, तो फिर आपकी कौम में मिरासी पैदा होंगे सर। क्या बात कर रहे हैं। मजहबी तबके से लोग इसलिए पीछे हटते हैं कि इनकी आमदनी नहीं है ना, क्यों मैं किसी अपने बच्चों को मौलवी बनाऊं, मुझे पता है 6,000 की तनख्वाह में गुजारा करेगा, घरों से खाना लेके आएगा भाग। तो ये जो हमने यहाँ पे उठाई ना बात कि जी मौलवियों को नौकरियाँ दी जाए, ये इसी वजह से
इसका सेहरा सबसे पहले हसाम साहब को जाएगा, उन्होंने ये बात उठाई थी। उसके बाद उज़ैर साहब को जाएगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले काफिले का हम भी हिस्सा बन गए बताने की बुनियाद पे बात। तो इनकी बिल्कुल जी बिल्कुल, तो इसलिए इस बात पर मौलवी साहिबान के लिए ये गजटेड वाला मामला, इनकी नौकरी के मामला ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल उनके वजीफे बांधे जाएं यार, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जनाब। जो वजीफा और सेहरा इस पे हम मुत्तफिक हैं बात पे, वजीफा तो होना चाहिए, मगर ये जो दो के लिए सेहरा, इसके लिए भी दुआ करें, इनका भी सेहरा जल्दी। मैंने तो ट्रांसमिशन के बिल्कुल आगाज में हमारे मोहतरम उज़ैर भाई से ये बात पूछ ली थी कि हज़रत कौन सा वजीफा या कौन सा चिल्ला किया कि आप एक हैं, आपके पास दो है और हम दो हैं, हमारे पास एक बात ही हो रही है कि माशाल्लाह से जो है वो इतनी बड़ी टीम लेके चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है एक अब्बा है, दो बच्चे उनके जी जनाब अली जी बात को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो है वो नशरियात में जनाब मौजूद है। अच्छा किसानी साहब अगर मेहरबानी करें आप कोई 2-3 नशानात के भी सुनाते हैं। तो फिर हम कलाम पे चलते हैं। तो किसानी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज तो बड़े लोग देते हैं, हम फकीर लोग हैं। ये रमज़ान का महीना है और पूरा पाकिस्तान जो है महंगाई के इज्जत में, ईद आ रही है, खुदारा आप अच्छा फ्रूट खाते हैं, अच्छी इफ्तार करते हैं, अच्छी सहरी करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, तो अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब गुरबा है, जो यतीम है, जो बच्चे हैं, बस उनको उन खुशियों में शामिल करें। बस ये छोटा सा पैगाम। बस पैगाम तो रफ़ीक साहब ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, और हमारा भी ये पैगाम है कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। महंगाई ने लोगों की चीखें निकाल दी, और अब लोगों को समझ में नहीं आता कि वो घर का जो रोज़ का जो है सिलसिला उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो ज़रा इस तरफ भी थोड़ी नज़र डालें। जिस तरह हमारे मस्जिद के पेश इमामों की तनख्वाहें 10,000 15,000 है, इस तरीके से गरीब लोग भी इसी परेशानी का शिकार हैं। और असम्बली में उनको पेट्रोल भी फ्री का मिल रहा है, उनको कन्वेंस भी मिल रहा है, उनको जो है ना अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, कैंटीन में रोटी 1 रुपये की उनको मिल रही है। तो मकसद उन लोगों को फैसिलिटी मिल रही है जो लोगों को फैसिलिटी देते हैं, और जो बेचारे फैसिलिटियों के मुंतज़िर हैं, जो हकदार हैं, उन लोगों को मिलता है। तो खुदारा इस पर थोड़ा गौर करें कि असम्बली की कैंटीन में 1 रुपये की चाय, 1 रुपये की रोटी और 2 रुपये का सालन मिलता है। यहाँ पर जो है ना लोग भूखे मरते हैं। बिल्कुल जनाब नाज शरीफ का भी नज़ारा पेश फरमाया। इसी अशार के साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद अनसब कुरैशी साहब को मैं दावत नात दूंगा कि बन गई बात, उनका करम हो गया। मैं थोड़ा इसमें थोड़ी सी मैं गुजारिश करूं कि आज 20वीं की रात है और अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम आज ज़ख्मी हालत में बिस्तर पर है। तो अगर कुरैशी साहब आप मौला अली अलैहिस्सलाम के शान में कोई मनकबत या कोई ऐसी नात कोई सुना दे तो बिस्मिल्लाह। मैं तो पंजतन नहीं हूँ जनाब सनी साहब की फरमाइश पर। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं
समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो तन का गुलाम हूँ। और हुआ कैसे सर से वो तन जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, सहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, मैं तो तो पंजे तन का गुलाम हूँ। अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। और खिंची थी 13 रजब को जो खाने काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम। भाई जितने देखने वाले हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, सबसे एक बार गुजारिश करूंगा दुरूद पाक पढ़ के मिलके कहना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम मोहम्मद अनसब कुरैशी साहब ने और मैंने इनके साथ मिलकर थोड़ी सी कोशिश करी। अल्लाह करीम हम सबकी कोशिश को, जितने भी हम 5 लोग बैठे हैं, कबूल व मंजूर फरमाए। और बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम मोहम्मद अनसब कुरैशी साहब ने मनकबत का नज़ारा पेश करा। अल्लाह करीम पंजतन पाक के सदके में हम सबके बेड़े पार अता फरमाए। और नाज़रीन, एक दोस्त हैं हमारे मोहतरम जनाब राव मोहम्मद इसार अहमद साहब, जो कि दुबई से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम ट्रांसमिशन देखते हैं। उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। दुबई के तमाम दोस्तों को, राव इसार साहब जो कि बज़्म पंजतन पाक मिलाद कमेटी के चेयरमैन भी है, बरकातुल इस्लाम एकेडमी के चेयरमैन भी है, राव इसार साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं जनाब हाजी सैयद मोहम्मद हनीफ शाह साहब के लिए अल्लाह करीम उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जनाब आमीन आमीन। जनाब आली चूंकि प्रोग्राम इस्लाम पसीद हो रहा है और फिर 21वीं शब है, तो यकीन नबी का ये फरमान है, आले नबी का ऐलान करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कि जो उनके जंग के मामलात थे, जो उनकी मतलब जिनको शेर खुदा कहा जा रहा है, तो यकीनी तौर पे कल उनकी जिंदगी के हवाले किस तरीके से दीन इस्लाम को सरफराजी बख्शी है उसकी बात होगी। तो कल जो है वो हमारे पास तो रोज़ाना जिस तरह से एक गैदरिंग होती है उससे थोड़ा सा हटके माहौल होगा। और अच्छा जी, तो कल मेरा माइक बंद है मेरे ख्याल में, मैं खोल लूँ। अच्छा, तो मैं जो है वो आपको बताऊं कि कल हमारे पास जो है
وہ علماء کرام ہوں گے اور ایک سے زائد علماء کرام ہوں گے. کل مولا علی کی شان بیان ہوگی, کل ذکر علی ہوگا اور کل منقبت کا سلسلہ بھی ہوگا. تو کل کی نشریات حیدرآباد نیوز کی سب سے خاص نشریات ہوگی, شب 21 رمضان کی نشریات ہوگی. تو کل آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ رات 1 بجے براہ راست آپ کے سامنے ہوں اور انشاءاللہ تعالی کل 1 بجے ہی ہم لوگ جو ہے وہ نشریات کا آغاز کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے مہمانان جناب حفیظ صاحب آپ کا, جناب صاحب آپ کا تشریف لائے, جناب علامہ اطلان صاحب آپ کا تشریف لائے, جناب محمد علی حفیظ صاحب آپ کا تشریف لائے. اور سر دعا فرمائیں گے اختتام میں, اور رمضان صاحب کی صحتیابی کے لیے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کر دیجیے گا. جناب علامہ, میں دعا سے پہلے ایک پیغام لازمی دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج 20ویں شب ہے. کل بعد نماز عصر تا مغرب لوگ اعتکاف کی طرف جائیں گے, تو جو جا رہے ہیں ان کو مبارکباد بھی. اور 1-2 دن ہم نے اس پہ باقاعدہ ڈسکس بھی کیا کہ احتیاط کیا ہوتی ہے. جانے سے پہلے ان کے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے یا ان کو حرص دلانے کے لیے حدیث شریف پڑھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل فرما دے گا, اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے. اور یہ زمانے اوائل جو تھے اسلام سے پہلے کے, اس میں بھی اعتکاف ہوتا رہا. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جن میں سے اعتکاف جو لوگ کریں گے ان سے گزارش ہے کہ اعتکاف کی جتنے بھی احکامات ہیں کتاب پڑھ کے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. جو مسائل ہم نے بیان کی اس سے بھی آپ کو استفادہ ہوگا, اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین, مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو غلطی کوتاہی قصدن صاحباً عمدن ہوئی اسے معاف فرما. مولا کریم بن احباب نے تعاون کیا, ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما. ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ان سب کو محفوظ فرما. مولا کریم محمد رفیق سورتیہ, عادل صدیقی بھائی کے والد اماد صدیقی اور اصفر صدیقی, جاوید بھابا مرحوم, رفیق الزمان مرحوم, اقبال بھائی کی والدہ مرحومہ, عزیر بھائی کے والد مرحوم, زہیب بھائی کے والدین مرحومین, عابد میاں دہلوی مرحوم, ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا رب العالمین اس کے علاوہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں, ان کے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے, مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم رمضان بھائی کے صاحبزادی بیمار ہیں, عزیر بھائی کے سسر بیمار ہیں, مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا. زہیب بھائی کے سسر بیمار ہیں, مولا کریم انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. مولا کریم انہیں جلد صحت یاب فرما. رمضان صاحب کی صاحبزادی بیمار ہیں, مولا انہیں بھی شفا عطا فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں, ان کے جتنے عزیز و اقربا بیمار ہیں, مولا سب کو شفا عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں, مولا انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. ان تمام دعاؤں پر اپنی محبوب کے صدقے سے رحمت کی نظر فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.